Today we'll be talking about 5 non-negotiables if you just reached 30 or you are 30 plus already. See, the thing is that 30 ke baad fitness is not just about aesthetics, it's about survival. It's about moving better, it's about feeling healthier, and to stay in the game for the longer run, you need to have certain non-negotiables that you should not be compromising on when it comes to your own health. So it's more about survival, energy and control. And if you ignore these 5 things, तो आपकी body आपको बताएगी कि आपने इन्हें ignore किया है, and then eventually when you reach 40 or 50, you will feel the side effects of all of that. So if you don't want that, and if you're someone who's looking at this video and you've just turned 30 or you're 30 plus, I want you to seriously take all of these into consideration. हम सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो ज़रूरी हैं और जो आपको करनी चाहिए, and then we'll be talking about the drawbacks, that if you miss out on these things, what drawbacks could you possibly experience. First and foremost is strength training. Minimum 3 times per week. That is very important. Strength training का goal बहुत simple होना चाहिए. It should be focusing around compound lifts mainly. You should be able to master 4 of your main movements, that is the push, pull, squat and hinge. और इसी में आपको कोशिश करना चाहिए कि आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस करें ताकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड नंबर ऑफ मसल्स एंगेज कर पाएं इन अ सिंगल मूवमेंट. यू कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ most of it, right? अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हमारा गोल क्या है? इट इज़ वेरी सिंपल. द गोल ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज टू प्रिजर्व मसल एंड टू प्रोटेक्ट योर मेटाबॉलिज्म. क्योंकि एज यू एज फर्दर ऑन आपको मेटाबॉलिज्म भी चाहिए, सो दैट यू डोंट पुट ऑन एक्सेसिव फैट and that you are actively burning calories throughout the day, and you need that muscle for long term fitness. आपके joints की health के लिए, आपकी overall well being के लिए, you need to preserve or actually build muscle mass, lean muscle mass, in order to live a healthier life longer term. का outcome ये होना चाहिए कि it should be gaining strength and building muscle. See, muscles को आपके frame पे visibly show होने में, if you haven't been into the gym और आप obese हैं या फिर you're a hard gainer, it will take some time for the muscle to actually come on you. How you can track if you're building muscle or not is by your strength. अगर आपकी strength बढ़ रही है, आपके workouts में पहले से बेहतरी आ रही है, improvement आ रही है, that is one of the possible signs कि आप muscle build कर रहे हो. The more muscles you have, science proves it, जितना ज़्यादा muscle mass आप में होगा, आप उतने ज़्यादा diseases के against easily fight कर सकते हैं. आपके joints over the longer period of time उतने protected रहेंगे. There was a recent research as well जो कह रही थी कि people who have a higher percentage of muscle mass have been proven to fight better against cancer cells. तो muscle mass is that important. And आपके जितने भी joints हैं उनके around जब अच्छा lean muscle mass होता है, they protect the joint. और जितना ज़्यादा muscle mass आप में होगा उतना आपका basal metabolic rate अच्छा होगा, उतना आपका metabolism अच्छा होगा, which means that you will actually be burning more calories at rested state and not storing fat. If you're not lifting weights, you're not into strength training, resistance training, आप हर साल पहले से ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हो, even if you don't see it yet. Number 2 is protein intake, 0.8 to 1.2 grams minimum per body kg per kg of body weight. अब आपका गोल ये होना चाहिए कि आप इस प्रोटीन इंटेक को थ्रू आउट द डे, आप जो मील्स हैं उनमें स्प्रेड आउट करें. कोशिश करें आपका हर मील एक बैलेंस्ड और प्रोपोर्शनेट मील है, जिसमें आप रेशियो 40-40-20 की रख सकते हैं. इट शुड बी 40% प्रोटीन, 40% कार्ब्स एंड 20% फैट. That is how you can easily hit the target while spreading the target across 3 to 4 meals in your day. That will help you hit your protein target as well. And again, it's protein that builds muscle, it preserves your muscle, and overall protein का thermic effect of food ज़्यादा होता है, which means body burns maximum calories while it is digesting protein. तो muscle building में help करता है, muscle recovery में help करता है, and also thermic effect of food भी है, satiety भी अच्छी है, so it is something that you should be prioritizing in your meal. Number 3, stay active daily, which means कि आप moderately active हैं तो आप relatively active हो जाएं. आप कोशिश करें कि यू शुड एटलीस्ट गेट 7 to 8,000 स्टेप्स अ डे. कोशिश आपने ये करनी है कि आप जितने भी टास्क अदर देन द जिम पूरे थ्रू आउट द डे कर रहे हैं, कोशिश करें उनमें रिलेटिवली एक्टिव हो जाएं. गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग और जस्ट हैव वॉक थ्रू आउट द डे इन योर हाउस. ट्राई टू हिट 7 to 8,000 स्टेप्स अ डे, विच विल हेल्प यू बर्न मोर फैट, क्योंकि आपका नॉन प्लान्ड एक्सरसाइज एक्टिविटी बढ़ जाता है. एंड सेकेंडली, डेली मूवमेंट विल हेल्प योर जॉइंट्स टू स्टे लुब्रिकेटेड, स्टे हेल्दी, और ओवरऑल आपकी बॉडी में जो स्टिफनेस है वो नहीं आएगी. इफ यूर समवन दैट वर्क्स अ लॉट एट द डेस्क, रिलेटिवली एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, तो यू विल नोटिस कि आपकी जो लोअर बैक स्टिफनेस है या आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस है वो रिलेटिवली कम होना शुरू हो जाएगी. So that is something that you should be extremely focusing on. 4, sleep. Sleep, minimum 6 to 8 hours of sleep is essential for you, especially after you're 30. I understand in your 20s there's a lot more work on you, there's a lot more on the plate. आपने बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है, इसलिए sleep is something that we do not prioritize. लेकिन sleep आपके लिए बहुत healthy है
इवन इफ़ यू आर फीमेल और मेल, आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत हेल्दी है। हम सोते हैं, दैट इज़ व्हेन द बॉडी रिकवर्स फ्रॉम ऑल द वेयर एंड टेयर इट हैज़ बीन थ्रू आउट द डे। आपका जो कॉर्टिजोल लेवल है वो ड्रॉप होता है, और आपके जो भी healthy hormones and testosterone, estrogen, that comes to balance again. And you know कि if cortisol levels inside your body rise, तो आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से आपके जो फैट स्टोर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। कॉर्टिजोल इज अ फैट स्टोरिंग हार्मोन वाइल टेस्टोस्टेरोन इज अ फैट बर्निंग हार्मोन, और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। सो यू नीड टू बी एक्टिवली लुकिंग आफ्टर योर स्लीप एज वेल। मोस्टली लोग जो आपने देखा होगा 30 के बाद सारा दिन थके हुए रहते हैं, इट इज़ बिकॉज they are not prioritizing their recovery, they're not prioritizing their sleep. Number 5 is consistency over intensity. See, after 30 लाइफ की जो dimensions हैं वो बहुत तरीकों से change हो जाती हैं। You cannot go intensely after everything. Although age is just a number, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि if they just cross 30, अब अपने 30s में हैं तो अब वो जवानी के दौर से निकल आए हैं, but actually 30 is the prime of most people, and if you take it like that and you treat yourself accordingly, this 30 to 40 years of your age can be the best years of your life if you know how to handle and tackle all of this. Consistency over intensity. आपने इंटेंसिटी पे फोकस नहीं करना, आपने कंसिस्टेंसी फोकस करना है। सी, जिम ना जाने से अच्छा, एक दिन जिम जाके अपनी सारी एफर्ट लगाने से अच्छा, एक ऐसी रूटीन आप बिल्ड करें जिसमें आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। 5 times 6 times a week जिम जाना at 30, since you have a lot of workload, since you have family to look after, most of you, तो उसमें कंसिस्टेंसी बिल्ड करना मुश्किल है। बट इफ यू कैन जस्ट मैनेज इट 3 times a week, हेल्प यू अलॉट। तो आपने कंसिस्टेंसी पे फोकस कर ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है जो आपके स्केड्यूल, आपकी रूटीन, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको हेल्प आउट करेंगी, आपके लिए मुश्किल खड़ी नहीं करेंगी, बल्कि आपकी उसी रूटीन के अंदर एडजस्ट हो सकेंगी और आसानी से आपको एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएंगी। सो कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ नॉट फॉलोइंग दीज 5 नॉन नेगोशिएबल्स। आपकी बॉडी को क्या ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ सकते हैं, आपको क्या ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज मसल लॉस, नोटेड एज सार्कोपीनिया। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कॉमनली आपको एक्सपीरियंस आफ्टर द एज ऑफ 30, ऑलमोस्ट हर 10 साल के बाद, एक डेकेड के बाद 6 से 8% मसल मास ड्रॉप होना शुरू हो जाता है वैसे ही। सो इफ़ यू डू नॉट स्ट्रेंथ ट्रेन 3 times per week मिनिमम, या फिर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फोकस नहीं करते, तो आपका मसल लॉस स्टार्ट हो जाएगा, मसल प्रिजर्व नहीं होगा, मसल बिल्ड नहीं होगा, एक्चुअली लॉस होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप सार्कोपीनिया जैसी चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। आपका मसल लॉस होने की वजह से जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे, एंड यू विल इवेंचुअली स्टार्ट टू फील एंड रियलाइज कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। अब उन इफेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आपके जब मसल लॉस होना स्टार्ट होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन कर जाएगा। वंस योर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन, इट मींस यू विल स्टार्ट टू एक्यूमुलेट एंड स्टार्ट स्टोरिंग मोर फैट as compared to when you were in your 20s. Secondly, lower the muscle mass, higher the load on the joints and higher the risk of injuries on the joints. ठीक है, तो आपके joints protected नहीं रहेंगे as you start losing muscle mass, और eventually when you're in your mid 40s or 50s आपको कोई ना कोई joint injury होने के chances हैं, and your joints will get weaker over time. They will bear the load of all of your body throughout the day. Skinny fat type of physique बनना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के बाजू skinny हो जाते हैं, chest बहुत skinny हो जाती है, but they have a protruded gut, और उनकी जो फैट स्टोरेज होती है वो सारी on their belly and on their hips and thighs होती है। So that's the kind of look you will start to get if you don't have enough muscle mass and it is not evenly distributed across the body. Secondly, no protein intake is obviously storing more fat and weaker recovery. Muscles को उनकी requirement नहीं मिल रही। आपकी जितनी भी बॉडी है, ऑर्गन्स हैं, वो सारे भी कहीं ना कहीं प्रोटीन को यूटिलाइज कर रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके से। जब उनको वो सब नहीं मिल रहा तो फैट स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी एज इट इज सपोज टू, और आपको वही ब्रेन फॉग और गट इश्यूज एंड स्टफ लाइक दैट एंड ऑल द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट हैविंग इनफ लीन मसल मास, ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकती हैं। लो डेली मूवमेंट, जिस तरह अगर आप रिलेटिवली एक्टिव रहते हैं, लो डेली मूवमेंट में आप देखें कि स्टिफर बॉडी एंड फैट गेन। ऑब्वियसली व्हेन यू आर नॉट मूविंग थ्रू आउट द डे you will eventually burn lesser calories, and lesser calories means putting on more fat or burning less fat as a whole. And stiffer body, it means कि आप सारा दिन जब बैठे रहेंगे on your desk या on your couch if you're laying down, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को स्टिफ करना शुरू कर देंगी, और फिर वही बैक पेन्स एंड जॉइंट पेन्स एंड दैट all of that stuff will start hitting you like a drug. Poor sleep, this is the most important thing I believe. Poor sleep is equal to hormonal chaos. अब देखें, all of these things ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए हैं, ठीक है। सिमिलरली पुअर स्लीप आपकी बॉडी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाना शुरू कर देती है, एंड स्लीप इज़ द ओनली बिगेस्ट एंड द प्राइमरी एंड वन ऑफ द बेस्ट टूल्स वी हैव टू रिकवर।
तो जब आप रिकवर नहीं करेंगे प्रॉपरली तो क्या होगा कि आपकी बॉडी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन या स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाएगी, विच विल इवेंचुअली इंक्रीज योर कॉर्टिसोल लेवल्स। और जब कॉर्टिसोल लेवल्स, अब आपके जितने भी हेल्दी हार्मोन्स हैं दे आर एट अ कांस्टेंट बैटल विद कॉर्टिसोल। आप समझ, द मोमेंट कॉर्टिसोल गोज अप, द हार्मोन्स दैट आर सपोज टू मेक यू हेल्दी, सपोज टू मेक यू फील गुड, वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। क्वालिटी, पुअर स्लीप, पुअर रिकवरी, तो फिर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। आप टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होने से जो जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आगे आप गूगल कर सकते हैं, या विल टॉक अबाउट देम इन सम अनदर वीडियो। Just letting you know, a bit of those is low libido, low sex drive, low energy to perform, low confidence। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आना शुरू हो जाती हैं। सिमिलरली इफ़ यूर अ फीमेल और आपका एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो जाता है और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, दैट मीन्स कि आपको एंजाइटी, स्ट्रेस होना शुरू हो सकती है। इमोशनल चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर करना शुरू कर सकती हैं। ऑल ऑफ दिस स्टफ एंड ऑब्वियसली inclusive of storing more fat and getting fat. Last but not the least is no consistency is equal to a start stop cycle। ये हमने बहुत दफ़ा देखा है। Since हमने यहाँ भी यही बात की कि अभी आपको कंसिस्टेंसी फोकस करना चाहिए, इंटेंसिटी फोकस नहीं करना चाहिए। You all that will do is keep you in a start stop cycle। आप बहुत मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे किसी चीज़ को, और उसके बाद फिर जब वो मोटिवेशन जाएगी या फिर आप उसको किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो फिर वो चीज़ रुक जाएगी। मोस्ट ऑफ द पीपल दैट कम थ्रू इन माय कोचिंग प्रोग्राम, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस, ज़्यादातर लोगों का यही होता है, द रीज़न वाई दे आर नॉट एबल टू गेट इन टू शेप इज़ बिकॉज दे स्टार्ट स्टॉप साइकिल। क्योंकि वो द मोमेंट दे फील मोटिवेटेड वो एक चीज़ करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, फिर रोक देते हैं, फिर एक चीज़ स्टार्ट करते हैं, फिर रोक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 डेज चैलेंज किसी ने ज्वाइन किया, बहुत मोटिवेशन के साथ किया, इंटेंसिटी के साथ उसमें एक्सरसाइज की, एज सून एज दोस 40 डेज आर ओवर, उसके बाद सब कुछ वापस जीरो पे चला जाता है। तो यू हैव टू फाइंड थिंग्स दैट यू कैन स्टे कंसिस्टेंट विद, स्टे डिसिप्लिन्ड विद, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द थिंग्स दैट हैव हाई इंटेंसिटी और जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड या ड्रिवन फील करें। So let me know if आज की वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं, and it has somewhat provided you with some sort of knowledge or not। और अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं। और अगर कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहे तो वो क्यों नहीं कर रहे, क्या रीज़न है, मुझे उसके बारे में बताएं। आई वुड लव योर फीडबैक एंड आई वुड वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड stay updated for the next videos to come। Jazakallah।